A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy. As you know very well, we are discussing a very important topic of class 11th accountancy, that is recording in journal. In this topic, we discussed a lots of journal entries which are passed at the specific cases at the time of the specific transaction, like a transaction related to the goods, transactions related to the banking transactions, as well as we are already talking about the entries at the time of the discount. There are basically two types of discount, trade discount and cash discount. ट्रेड डिस्काउंट को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं और कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं, एंड दे आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ द कैश डिस्काउंट, दैट इज अ डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड. ट्रेड डिस्काउंट का इफेक्ट ट्रांजेक्शन पे तो नहीं पड़ता बट अमाउंट पे पड़ता है, यानी कि अमाउंट में से ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू को डिडक्ट करते हैं और कैश डिस्काउंट को हम शो कराते हैं कि डिस्काउंट अलाउ हुआ है कि रिसीव हुआ, और उसको हम लोगों ने लास्ट वीडियो में प्रॉपरली अच्छे से डिस्कस भी किया है. In today's video, we are discussing the first of the and last topic of the recording in general, and the topic is opening entry. So please note down in your copy what is opening entry and how we pass the opening entry. So please note down in your copy. The topic is opening entry. So what is opening entry? It is a journal entry. It is general entry by the means of which by the means of which the various balances balances appearing और relating, ये भी कह सकते हो relating previous year, relating previous accounting period are brought forward in the books of current accounting period. So in short, we can say that what is opening entry? ओपनिंग एंट्री एक ऐसी एंट्री होती है, एक ऐसी जर्नल एंट्री होती है जिसमें हम वेरियस बैलेंसेस यानी डिफरेंट बैलेंसेस होते हैं प्रीवियस ईयर के, यानी प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड के जो भी बैलेंसेस होते हैं उनको ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं, यानी उन्हें करंट अकाउंटिंग पीरियड में ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं. जैसे कि लास्ट ईयर हमारे पास कैश बैलेंस था 1 लाख रुपीज, तो जब हम इस साल अपनी अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे सो यू नो वेरी वेल इस साल क्या वो 1 लाख रुपए खत्म हो जाएगा? नहीं. यानी अगर हम प्रीवियस ईयर अगर हमारे पास कैश 1 लाख रुपए है, सो इट इज अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर बट इट इज अ ओपनिंग बैलेंस ऑफ द करेंट ईयर. यानी प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग इस ईयर का क्या होगा? ओपनिंग होगा, क्योंकि हम उसी से फिर इस साल का बिजनेस करेंगे, उसमें कुछ इंक्रीज करेंगे, कुछ डिक्रीज करेंगे, कुछ इनकम जनरेट करेंगे, कुछ एक्सपेंस जनरेट होगा. So all the transactions are the basis for the closing balance of the previous year, which are brought forward to the current accounting period as a opening balance. यानी जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है उसे हम इस साल ओपनिंग बैलेंस की तरह कंसीडर करेंगे, एंड इस बैलेंस को कंसीडर करने के लिए वी पास द जनरल एंट्री. इसके लिए हम एक जनरल एंट्री पास करेंगे, दैट इज नोन एज द ओपनिंग एंट्री. ये जनरल एंट्री कैसे पास होती है? इस जनरल एंट्री का रफ फॉर्मेट ये है कि वी debited all the assets which is known as the sundry assets, and credited all types of the liabilities which is known as sundry liabilities.
and balance amount will be taken as the capital. Okay, so this is a journal entry at the time of the ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ द करंट ईयर, यानी लास्ट ईयर जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है उसे करंट ईयर में पोस्ट करना, उसे करंट अकाउंटिंग ईयर में ब्रॉड फॉरवर्ड करने के लिए हम ओपनिंग एंट्री पास करते हैं। जैसे कि एग्जांपल की हेल्प लेते हैं आपके लिए, सो लेट्स वी टेक द एग्जांपल। द एग्जांपल इज on 1st April 2019, on 1st April 2019 following balances are as follows, and the balances are, as you can see, that cash in hand 36,000, cash in hand 36,000, cash at bank 51,200, cash at bank 51,200, and this amount is given in rupees, as well as stock 1 lakh. It is on closing stock of the previous year, but it will be taken as the opening stock of the current year. Furniture 20,000, building furniture 20,000, building will be a 9,02,800, and debtors 26,000, and creditors is 4,68,000, 4,68,800. It is a creditor. So this is a question, आपको कह रहा है पास ओपनिंग एंट्री, आप ओपनिंग एंट्री पास करो, या सिर्फ बोला होता पास जर्नल एंट्री तो भी हम समझ जाते कि यहाँ पर ओपनिंग एंट्री पास होगी, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स बैलेंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लायबिलिटीज बैलेंस। सो यू कैन सी दैट कैश इन हैंड हमारे पास 36,000 रुपए का था, कैश एट बैंक 51,200 का, स्टॉक है हमारे पास 1 लाख, फर्नीचर 20,000, बिल्डिंग 9,02,800, डेटर 26,000, क्रेडिटर 46,800 एंड क्रेडिटर इज 4,68,800। तो ओपनिंग एंट्री पास करने के लिए हम लोग बेसिकली करते क्या है, इसमें हम लोग ओपनिंग एंट्री पास करने के लिए यू नो वेरी वेल, अभी मैंने आपको समझाया था, ऑल दी एसेट्स आर डेबिटेड, सारी एसेट्स को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, एंड सारी लायबिलिटीज को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और जो बैलेंस अमाउंट आएगा उसको हम लोग किस तरह से कंसीडर करेंगे, बैलेंस अमाउंट को हम लोग कंसीडर करेंगे एज अ कैपिटल। ओके, सो इन दिस सिचुएशन आपको पहले क्लासिफाई करना पड़ेगा कौन कौन सी एसेट्स है और कौन कौन सी लायबिलिटीज है। So you can see that cash in hand, cash at bank, stock, furniture, building, debtor is a assets, तो इन सबको डेबिट कर दो। कैश इन हैंड डेबिट 36,000, कैश एट बैंक is 51,200, stock debit 1 lakh, furniture debit 20,000, and building debit 9,02,800 and debtor 26,000। आपने सारी एसेट्स को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और लायबिलिटीज कौन सी है आपकी, क्रेडिटर, तो आपने क्रेडिटर्स को क्या कर दिया, क्रेडिट, कितना 4,68,800। सो आपने सारी एसेट्स को डेबिट कर दिया और सारी लायबिलिटीज को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ओके, एंड जो फाइंड आउट होगा बैलेंस, दैट इज अ कैपिटल। कैसे फाइंड आउट होगा कैपिटल, आप क्या करोगे, सारी एसेट्स को एड अप कर दोगे,
एंड लाइबिलिटीज आपकी क्या है, क्रेडिटर्स, उसमें से उसको क्या कर दोगे, माइनस, यानी इन सबको ऐड करोगे और उसमें से इस वैल्यू को क्या कर दोगे, डिडक्ट कर दोगे, एंड यू विल फाइंड दैट द कैपिटल। कैपिटल कैसे होगा, कैपिटल यू विल फाइंड, यू नो वेरी वेल व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल, दैट इज टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी. So this balance will be taken as 6,62,67,200. ये आप एड लेस करके देख लेना, चेक कर लेना कि कितना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. दिस इज योर आंसर, दैट इज 6,67,200 एंड इट विल बी टेकन द बैलेंस फिगर. ओके, ये कैसे आया 6,67,200? सारी एसेट्स को ऐड किया, उसमें से 4,68,800 को माइनस कर दिया एंड द बैलेंस विल बी 6,67,200, दैट इज द कैपिटल. एंड ये एंट्री कब पास होगी, दिस विल एंट्री विल बी पास्ड ऑन 2019 अप्रैल 1. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री. हाउ इट विल बी पास द ओपनिंग एंट्री, एंड ये सारी एंट्री प्रॉपर फॉर्मेट में पास होंगी. फॉर्मेट इज डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट. तो उसको लेकर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपके मन में कि सर हम कैसे एंट्री पास करें. Let's we move to the next topic of today's video, that is a ledger. So what is ledger? First of all, please note down in your copy. लेजर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, लेजर इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द जनरल. जब भी हम जनरल बना लेते हैं तो जनरल इज अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग. जनरल्स में हम सारे ट्रांजेक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड करते हैं और लेजर क्या करता है, उन सारी ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करता है ऑन इट्स नेचर. जैसे कि राम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे इट विल बी रिकॉर्डेड इन द लेजर ऑफ राम. रेंट से रिलेटेड जितने आइटम्स होंगे इट विल बी रिकॉर्डेड इन द रेंट रेंट लेजर. इट विल बी नोन एज द अकाउंट. लेजर को हम बेसिकली किस नाम से देखते हैं, अकाउंट के नेम से देखते हैं. यानी लेजर बनाना मतलब सबका स्पेसिफिक अकाउंट बनाना. जैसे आपने ट्रांजेक्शन किया मिस्टर श्याम से, तो मिस्टर श्याम से जितने भी आपने ट्रांजेक्शन किए हैं उनका आप लेजर कंस्ट्रक्ट करोगे. लेजर मीन्स मिस्टर श्याम्स अकाउंट. सो लेजर इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ जनरल. जनरल बनाने के बाद हम लेजर बनाते हैं. जनरल जो होता है बेसिकली सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, वेयर इज लेजर सारे ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करता है ऑन इट स्पेसिफाई नेचर. जहां हम सारे ट्रांजेक्शन को उनके नेचर के अकॉर्डिंग उनको एक स्पेसिफिक प्लेस देते हैं, इस स्पेसिफिक घर देते हैं और उस घर में उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं. जैसे रेंट से रिलेटेड जितनी एंट्रीज होंगी वो सब एक लेजर में रिकॉर्ड होंगी विच इज नोन एज द रेंट अकाउंट. राम से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन होंगे वो सिर्फ एक लेजर में रिकॉर्ड होंगे, दैट इज नोन एज द राम अकाउंट. उसी तरह से अगर आपने कोई भी सेल किया, कोई भी परचेस किया, कोई भी सेल्स रिटर्न किया, परचेज रिटर्न किया, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द स्पेसिफाई लेजर विच इज नोन एज द परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट. इट विल बी नोन एज द लेजर. So in theoretical words, what is ledger? Ledger is a principal book. It is a principal book of accounting system of accounting system which contain all accounts, which contain all accounts, जिसमें हम सारे अकाउंट्स को इंक्लूड करते हैं. एंड द अकाउंट्स इज फॉर एग्जांपल एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, इनकम अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. यू नो वेरी वेल मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग, यू नो वेरी वेल अकाउंट्स आर क्लासिफाइड टू द 5 कैटेगरी. तो लेजर में क्या होता है, हम सारे अकाउंट को उनके नेचर के अकॉर्डिंग, जैसे एसेट्स का अकाउंट है तो एसेट्स में कई तरह के अकाउंट्स होंगे. फर्नीचर का अपना अकाउंट होगा, लैंड का अपना अकाउंट होगा, मोटर व्हीकल का अपना अकाउंट होगा, गुडविल का अपना अकाउंट होगा. उसी तरह से लाइबिलिटीज में लोन ले लिया आपने बैंक से, क्रेडिटर्स अकाउंट हो गया, इनकम्स अकाउंट यानी अगर आपको सेल हो रहा है इट इज एन इनकम अकाउंट, परचेज इज एक्सपेंस अकाउंट एंड कैपिटल यू नो वेरी वेल इट इज अ कैपिटल अकाउंट. So, you know very well what is ledger. Ledger is a principal book of accounting system which contain all types of accounts. इसमें हम लोग आपको पहले बेसिकली आपको ये बता दूं कि लेजर किसके प्रिपेयर बनता है. अब इसको ध्यान से समझना.
फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है बिजनेस में, ठीक है, तो ट्रांजेक्शन को सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं। किस में रिकॉर्ड करते हैं, ध्यान से समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन एनी ट्रांजेक्शन इनकर ऑकर्ड इन द बिजनेस, यानी बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन होता है तो सबसे पहले हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड किस बेसिस पे करते हैं, अगर बिजनेस स्मॉल है, स्मॉल स्केल का बिजनेस है, तो वो सारे ट्रांजेक्शन को सबसे पहले कहां रिकॉर्ड करता है, दैट इज जनरल, जैसे भी आप पढ़ रहे थे। लेकिन अगर बिजनेस बड़ा है, लार्ज स्केल पे बिजनेस करता है, तो वहां वो जनरल प्रिपेयर नहीं करता, वहां वो प्रिपेयर करता है दैट इज सब्सिडरी बुक। इसको मैं अभी बताऊंगा व्हाट इज सब्सिडरी बुक। अभी आपने जनरल पढ़ा, एंड आफ्टर दैट जब बिजनेस बड़ा होता है, लार्ज स्केल पे बिजनेस होता है, तो वहां पे सब्सिडरी बुक प्रिपेयर होता है। वो क्या होती है, कैसे बनता है सब्सिडरी बुक, अभी आपके कोर्स में है, उसको आगे पढ़ना, तो अभी कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद रिकॉर्डिंग करने के बाद हम उस ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। क्लासिफाइंग में क्या होता है, दैट इज चाहे आप जनरल प्रिपेयर करो, चाहे आप सब्सिडी बुक प्रिपेयर करो, कोई मैटर नहीं है। चाहे जनरल प्रिपेयर करो, चाहे सब्सिडी बुक करो, आपको क्लासिफिकेशन स्टेप फॉलो करना है। यानी आपको क्या प्रिपेयर करना है, लेजर प्रिपेयर करना। सो इन शॉर्ट वर्ड वी कैन से दैट if any transaction are occurred in the business, first of all it is recorded in the primary book. It is known as the primary book, original books, original entry. You know very well, books of original entry. That's why जनरल को और सब्सिडी बुक को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बिकॉज ऑफ यहाँ ट्रांजेक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड किया है। बिजनेस अगर छोटे लेवल का है तो वहां ट्रांजेक्शन को जनरल में रिकॉर्ड करना सफिशिएंट होता है, लेकिन अगर बिजनेस बड़ा है तो सारे ट्रांजेक्शन को जनरल में रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए एक स्पेसिफिक सब्सिडी बुक प्रिपेयर की जाती है। उसके बाद हम लेजर प्रिपेयर करते हैं, एंड लेजर इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ जनरल और सब्सिडी बुक, यानी इट इज फॉलोड आफ्टर द रिकॉर्डिंग स्टेप्स। यानी कि लेजर हम तब फॉलो करते हैं जब हम ट्रांजेक्शन को प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। That's why it is known as it is a principal book of accounting system which contain all accounts. So what is the format of ledger? Let's we take it. The format of ledger account is format of ledger account. The format of ledger account is totally based on the account, normal account. तो उसमें लेजर अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, सबसे पहले टॉप में लिखते हैं नेम ऑफ द अकाउंट, जिसका अकाउंट आप बना रहे हो। जैसे राम का अकाउंट बना रहे हो, श्याम का अकाउंट बना रहे हो, तो उसका नेम लिखते हैं टॉप में। उसके बाद वी ड्रॉ लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेज का आपने लाइन ओपन की उसको बीच से डिवाइड करते हैं टू कैटेगरीज। द लेफ्ट हैंड साइड विल बी नोन एज द डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड विल बी नोन एज द क्रेडिट साइड। और डेबिट साइड में डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो अमाउंट, ये कॉलम बन गए। अब इनको मैं इनके हेडिंग्स बता देता हूं कौन कौन से होंगे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो एंड अमाउंट, अमाउंट के ब्रैकेट में रुपीस का साइन लिख सकते हैं आप लोग। डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट। ओके, सो यू कैन सी दैट जो ये बीच की बॉर्डर लाइन है वो डिसाइड कर रही है कि किधर डेबिट साइड है किधर क्रेडिट साइड है। इट विल बी अ डेबिट साइड एंड इट इज अ क्रेडिट साइड। ओके, डेबिट साइड में जब भी डेट लिखते हैं तो पहले यहां पे ईयर, यहां मंथ और यहां डेट। उसी तरह से क्रेडिट में भी ईयर, मंथ और डेट कंसीडर करते हैं। और डेबिट साइड के किसी भी ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करते हैं विद द प्रीफिक्स दैट इज टू, और जो भी वैल्यू है उसको अमाउंट में नोट डाउन करते हैं। उसी तरह से क्रेडिट में भी हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं दैट इज 5। यानी कोई भी ट्रांजेक्शन को लेजर में रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट में कोई भी
पर्टिकुलर्स में नेम लिखने से पहले, कोई भी चीज लिखने से पहले उसके आगे प्रीफिक्स यूज करते हैं, दैट इज टू। और क्रेडिट में रिकॉर्ड करने से पहले किसी भी नेम, किसी भी आइटम्स को उसके आगे प्रीफिक्स यूज करते हैं बाई, जो इस बात की पहचान होता है, इस बात को रिकॉग्नाइज करता है कि ये चीज डेबिट में रिकॉर्ड है, ये चीज क्रेडिट में रिकॉर्ड। और एट द एंड ऑफ द, यानी जब आपने पूरा लेजर अकाउंट बना लिया, तो यू हैव टू टेकन इनटू माइंड, आपको इसके बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। दिस साइड इज इक्वल टू द दिस साइड, इट मींस डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के इक्वल होना चाहिए। इक्वल नहीं है तो आपको करना पड़ेगा। एक बार फिर समझ लीजिए, लेजर अकाउंट का जो दोनों साइड का बैलेंस है, डेबिट बैलेंस एज वेल एज द क्रेडिट, टोटल ऑफ डेबिट एंड टोटल ऑफ क्रेडिट इज इक्वल, आर इक्वल टू ईच अदर। अगर इधर 10,000 टोटल आ रहा है तो उधर भी टोटल 10,000 आना आएगा, अगर नहीं आएगा तो आपको करना है। कैसे करना है वो मैं जब क्वेश्चन करूंगा तो उस पर डिस्कशन करूंगा। अभी मैं क्वेश्चन एक छोटा सा लेकर आपको लेजर अकाउंट समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द क्वेश्चन। मैं ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं लूंगा, मैं बहुत छोटा सा क्वेश्चन लूंगा और उस क्वेश्चन के हेल्प से आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज लेजर अकाउंट। पहले तो ये समझना जरूरी है सर लेजर अकाउंट होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपने 3-4 एंट्री पास कर दी, क्योंकि यू नो वेरी वेल विदाउट जनरल वी कैन नॉट प्रिपेयर लेजर, बिना जनरल के तो हम लेजर बना ही नहीं सकते, तो उसके लिए हमारे पास जनरल होना जरूरी है। तो मैं एक छोटा सा 2-3 ट्रांजेक्शन ले लेता हूं, जैसे कुछ ट्रांजेक्शन मैं ले लेता हूं आपकी हेल्प के लिए। एंड द ट्रांजेक्शन आर जनवरी 1 कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मैंने फॉर्मेट नहीं बनाया लेकिन जनरल भी फॉर्मेट में होगा, 1 लाख रुपीस। जनवरी 5 आपने गुड्स परचेस किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 40,000। जनवरी 10 आपने एक्सपेंस पे किया, दैट इज अ वेजेस, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश दैट इज 1,000। एंड आफ्टर दैट जनवरी 15 आपने गुड्स सोल्ड किया, दैट इज अ कैश अकाउंट। मैं सब कैश में लिख रहा हूं क्योंकि मैं चीजें क्या करता हूं, कैश में ही बिलीव रखता हूं, क्रेडिट में मेरी दुकान नहीं चलती, ठीक। कैश अकाउंट दैट इज 50,000। मैंने देखो 4 ट्रांजेक्शन ले लिया, देयर आर 4 जर्नल एंट्री, और इस जर्नल एंट्री में आपको कह दिया, जर्नल एंट्री दे दिया और कह रहा है प्लीज प्रिपेयर दी लेजर अकाउंट। आप कहोगे ये क्या बात हुई, क्या बनाऊं लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट मींस व्हाट, क्या बनाना है हमको। तो देखो करना क्या है इसमें, इसमें हम लोगों को करना क्या है कि पहले तो आपको पता करना है कि कौन कौन से लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक। अब यू कैन सी दैट कैश डेबिट टू कैपिटल, परचेज टू कैश, वेजेस टू कैश, कैश टू सेल। तो आपको कौन कौन से लेजर अकाउंट बनाने हैं, सबसे पहले आपको ये देखना जरूरी है। तो पहले आप शॉर्ट आउट कर लो कि कौन कौन से लेजर अकाउंट बनाने हैं। आपको इसमें सबसे पहला लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा, डेट इज कैश। यस सर, कैश अकाउंट बनाना है, यानी ये है, ये है, ये है, ये है, यानी हर ट्रांजेक्शन में कैश है। व्हाट इज अमीशा, पहली बार, ओके। सो प्लीज हमें कौन कौन से लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर द कैश अकाउंट, सेकंड इज अ कैपिटल अकाउंट, और कौन सा अकाउंट बनाना है, दैट इज परचेज अकाउंट, और कौन सा अकाउंट बनाना है, दैट इज वेजेस अकाउंट, और कौन सा अकाउंट बनाना है, दैट इज सेल्स अकाउंट। सो इस पूरे जर्नल एंट्री में यू हैव टू प्रिपेयर दी 5 लेजर अकाउंट, दैट इज कैश, कैपिटल, परचेज, वेजेस एंड सेल्स। और हाँ एक बात और ध्यान रखनी है कि एक लेजर अकाउंट एक ही बार बनेगा, चाहे उससे रिलेटेड कई सारे ट्रांजेक्शन क्यों ना हो। जैसे अगर आपने इसमें देखा होगा कि कैश 1 2 3 4 4 बार आया, तो उसका बाद इसका मतलब ये नहीं कि कैश अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड 4 टाइम्स, कैश अकाउंट एक ही बार बनेगा। कैपिटल भी कितनी बार आया, एक बार आया तो एक ही बार बनेगा। अब आप वहां देख लो, परचेज एक ही बार आया, एक ही बार बनेगा, वेजेस भी एक ही बार बनेगा, सेल्स भी एक ही बार बनेगा। अगर आप बहुत बड़ा क्वेश्चन लोगे तो उसमें कई बार परचेज आएगा, कई बार सेल आएगा, कई बार आपके
कैश होंगे, कई बार कैपिटल होंगे। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उतनी बार लेजर अकाउंट प्रिपेयर करो। यू हैव टू प्रिपेयर अ लेजर अकाउंट एट वन टाइम। सिर्फ एक ही बार अकाउंट बनेगा और उसमें सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज अ क्लासिफिकेशन। दैट्स व्हाई हम लोग लेजर को कहते हैं इट इज अ स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें हम क्लासिफाई करते हैं सारी चीजों को। तो हम एक अकाउंट को एग्जांपल लेते हैं। द वन अकाउंट इज ओके। सो मैं आपको यू कैन सी दैट 5 लेजर अकाउंट बनाने हैं, बट हम यहाँ सिर्फ एक लेजर अकाउंट की बात करेंगे। ठीक है, वो लेजर अकाउंट का नाम है कैश अकाउंट। तो हाउ वी विल प्रिपेयर द कैश अकाउंट। अभी मैंने आपको फॉर्मेट बताया लेजर का। तो फॉर्मेट इज लेजर अकाउंट इज डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो एज अमाउंट। दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ कैश अकाउंट। कैश अकाउंट या किसी भी लेजर अकाउंट का फॉर्मेट यही होता है। इसकी हेडिंग लिख लेता हूं, डेट पर्टिकुलर्स जनरल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जनरल फोलियो एंड अमाउंट। आपने फॉर्मेट बना लिया। अब आपको पता है कि आपको इस जनरल एंट्री से कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है, दैट इज अ लेजर अकाउंट। सो यू कैन सी दैट द फर्स्ट थिंग, बहुत ही ध्यान से देखना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो आपको जब भी जनरल से लेजर प्रिपेयर करना है, जब भी आपको जनरल से क्या प्रिपेयर करना है, लेजर प्रिपेयर करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो कि जो अकाउंट बना रहे हो, जो भी अकाउंट आप बना रहे हो, उस अकाउंट उस जनरल एंट्री में किस जगह प्लेस है। डेबिट साइड में प्लेस है कि क्रेडिट में प्लेस है। यानी कैश अकाउंट बना रहे हो तो पहली एंट्री में कैश अकाउंट किस साइड प्लेस है, डेबिट में प्लेस। तो आप डेबिट में जाओ, उसको लिख दो उसकी डेट जनवरी 1। और यूनो वेरिएबल कुछ भी लिखने से पहले डेबिट में क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स टू। और कैश में कैश का नाम नहीं लिख सकते, इसलिए उसके अपोजिट का नाम लिखेंगे। यानी किसका नाम लिखेंगे, कैपिटल का नाम। और अमाउंट 1 लाख। अमाउंट हमेशा जो अकाउंट बनाते हैं उसके सामने का लिखते हैं, बट इस सिचुएशन में यू कैन सी दैट यहाँ पे भी 1 लाख रुपए। तो सर कौन सा 1 लाख रुपए लिखा है, मैंने कैश के सामने वाला 1 लाख रुपए लिखा है और नाम किसका लिखा है, अपोजिट वाले। दूसरे वाले में देखो, सेकंड में परचेज डेबिट टू कैश। अब यहाँ प्लेस क्या है, कैश, कैश प्लेस है क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में डेट लिख दो पहले। और कैश क्रेडिट में है तो क्रेडिट में कुछ भी लिखने से पहले क्या लिखते हैं, बाई लिखते हैं। क्रेडिट में कुछ भी लिखने से पहले प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, बाई। और यू नो वेरी वेल, कैश में कैश का नाम नहीं लिख सकते हैं, उसका अपोजिट वाले का नाम लिखेंगे। अपोजिट में कौन है, परचेस, दैट इज 40,000। उसी तरह से थर्ड वाले में देखो, कैश अगेन क्रेडिट साइड में प्लेस है, तो कैश के क्रेडिट में जाएंगे, जनवरी 10 लिखेंगे डेट में, और प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, बाई, और किसका नाम लिखेंगे, वेजेस का, दैट इज 1000। फिर लास्ट में भी आप देखो, कैश यहां पर क्या है, डेबिट, तो कैश के किस साइड जाएंगे, डेबिट में, किस डेट में, जनवरी 15, और प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, 2, और नाम क्या लिखेंगे, सेल्स, और अमाउंट क्या है, 50,000। सो आपने बना लिया कैश अकाउंट। आपने 1 2 3 4 जन एंट्री की हेल्प से यू हैव टू प्रिपेयर दी कैश अकाउंट। आपका कैश का लेजर बन गया। अब फाइनली आप क्या करते हैं, दोनों को इक्वल करना होता है। इधर का टोटल आ रहा है 1,50,000, इधर का भी टोटल कितना आ रहा है, 41,000, इधर आ रहा है 150, इधर आ रहा है 41। सो बैलेंस किस साइड आ रहा है, बैलेंस का मतलब है किस साइड वैल्यू कम पड़ रही है, इस साइड, क्योंकि दोनों का टोटल कितना आना चाहिए। मैंने अभी शुरू में ही बताया कि जब भी आप कोई लेजर अकाउंट बनाओगे तो डेबिट का टोटल इक्वल्स टू द क्रेडिट का टोटल। डेबिट का टोटल कितना आ रहा है, 150, क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है, 41। सर ये तो गलत है, इधर भी कितना टोटल आना चाहिए, 150। कितना कम पड़ रहा है, आप बैलेंस निकालो, 1,09,000। 150 में से 41 माइनस करो, कितना आएगा, 1,09,000। इसको आप लिखोगे बाई बैलेंस सीडी। बाई क्यों यूज करो, क्योंकि इधर कुछ भी लिखने से पहले आप प्रीफिक्स यूज करते हो बाई। अगर इधर बैलेंस आता तो क्या लिखते, टू बैलेंस सीडी। इधर आया तो बाई बैलेंस, बैलेंस आने का मतलब है किस साइड वैल्यू कम है, इधर वैल्यू कम है। इधर कितनी वैल्यू कम है, 1,09,000।
किस डेट पे लिखोगे? मंथ के एंड में। जैसे जनवरी का ट्रांजेक्शन है तो जनवरी के एंड का कौन सी डेट होती है? जनवरी 31। सो दिस इज द कैश अकाउंट। और आप लोग के लिए होमवर्क ये है कि इसी क्वेश्चन का आप कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, वेजेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट बनाकर मुझे व्हाट्सएप करिएगा। आई विल चेक इट कि आपको कितना क्लियर हुआ। एंड दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कैश अकाउंट एंड दिस इज कॉल्ड posting. Posting is a process by which we create the ledger with the help of general. Generally एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर के मार्क्स में पूछा जाता है what is posting? Posting is a process in which we create the ledger with the help of general. यानी जनरल की हेल्प से लेजर प्रिपेयर करना इट इज नोन एज द पोस्टिंग, क्योंकि इसमें आप पोस्ट कर रहे थे। कैश अकाउंट प्रिपेयर करते समय कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को पोस्ट कर रहे थे। अगर किसी में कैश का नाम नहीं होता तो उस ट्रांजेक्शन को हम कैश अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।